ابھی جو حصہ ہم نے بائبل مقدس کا پڑھا ہے، لکھا ہے کہ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا۔ اب یہ انجیر کا درخت جو ہے یہ بنی اسرائیل قوم کی عکاسی کرتا ہے، اور جہاں پر یہ بنی اسرائیل قوم کی عکاسی کرتا ہے، آج کے دور میں یہ مسیحی کلیسیا کی ایمانداروں کی عکاسی کرتا ہے اور انہیں پیش کر رہا ہے، کیونکہ خدا نے 2023 کے سال میں ہمیں مشکلات سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے بچا کر 2024 میں داخل کیا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سے ہمارے دوست، عزیز، رشتہ دار ایسے ہیں جو 2024 کو نہیں دیکھ سکے۔ ینگ لوگ، اگر ہم بھائی ہارون کے بارے میں بات کریں تو 35 سال ان کی ابھی عمر تھی، 35 سال ابھی ایج تھی، لیکن وہ خداوند نے سو گئے۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے ارد گرد نگاہ کریں تو بہت سے ہمارے ایسے دوست، ایسے عزیز، ایسے رشتہ دار ہیں جو آج ہمارے ساتھ اس جگہ پر موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں اس نے رکھا ہے تاکہ وہ ہماری زندگی کو بحال کر سکے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیاں بحال ہوں۔ تو پہلی بات کہ خدا بے مقصد زندگی کو پسند نہیں کرتا، بے پھل زندگی خدا کو کبھی بھی پسند نہیں آتی۔ انجیر کے درخت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یہ لگایا گیا تو یہ امید تھی کہ یہ پھل لائے گا، یہ پھل دے گا، یہ پھلے گا اور اچھا پھل دے گا، لیکن 3 سال تک اس کا مالک اس میں پھل ڈھونڈتا رہا، لیکن نہ ملا۔ اور جب نہ ملا تو اس نے فیصلہ کیا کیا، ڈیسیژن کیا لی کہ اس کو کیا کرو، کاٹ دو، ختم کر دو، اس کا دی اینڈ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ بلا وجہ اس جگہ کو روکے ہوئے نہ یہ پھل دے رہا ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ الٹا اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اب سوچیں، خدا نے مجھے، آپ کو، ہمارے ارد گرد سب لوگوں کو اس زمین پر زندہ رکھا ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ اس کا شکر ادا کرے، اس کے گھر میں آئے، اس کی حضوری میں جھکے اور اس بات کا اقرار کرے کہ خداوند ہی خدا ہے۔ آمین۔ یہی ہے جو ان کو زندگی دیتا ہے، صحتیابی دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، کاروبار دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ لیکن جب وہ اس کے حضور نہیں آتے، اس کی بات نہیں مانتے، اس کے آئین اور قوانین پر نہیں چلتے، تو پھر خدا ناراض ہوتا ہے۔ اور جب وہ اس درخت سے ناراض ہوا تو اس نے کہا کہ اسے کاٹ ڈال، 3 سال سے میں اس میں پھل ڈھونڈ رہا ہوں لیکن نہیں پا، اس میں پھل ہے ہی نہیں، یہ پھل لا ہی نہیں رہا، اس لیے اس کو کاٹ دے، ختم کر دے، اس کا اینڈ ہو چکا ہے۔ تو پہلی چیز اس تمثیل کے اندر کیا تھی کہ بے پھل زندگیوں سے خدا کو نفرت، اور دوسری چیز خدا موقع دیتا ہے،
टाइम देता है, वक्त देता है कि शायद ये 2024 में फल ले आए, ये 2024 में खुदा के घर आ जाए, ये 2024 में मेरी इबादत करे, ये 2024 को अपनी जिंदगी में अहम समझे कि खुदा ने मुझे ये दिया है। बेशक खुदा ने मुझे ये दिया है, खुदा ने मुझे ये बख्शा है, ताकि मैं इसमें क्या करूं, फल लाऊं। अब जब ये दिया गया, 3 साल से फल ढूंढ रहा है, मालिक ने कहा कि इसे काट डाल। अब मालिक क्या कहता है कि नहीं, इससे 1 साल और दे। मैं क्या करूंगा, इस पर मेहनत करूंगा, इसकी खुदाई करूंगा, इसे खाद डालूंगा, पानी वक्त पर दूंगा। अगर फिर भी ये फल ना लाया तो फिर इसे क्या करना, काट देना, फिर इसे काट देना। क्यों? क्योंकि मैं इस पर मेहनत करूंगा, इसे समझाऊंगा, इसे बताऊंगा कि तुम्हारी जिम्मेदारी है खुदा के पास आना, उसके साथ शराकत रखना, उसके साथ मिलना, उससे मोहब्बत करना। और अगर इसने ऐसा ना किया तो फिर इसे काट देना, क्योंकि फिर ये इस लायक ही नहीं होगा कि इसे इस जमीन पर रखा जाए। और तीसरी चीज जो इस तमसील के अंदर हमें मिलती है कि जब फल नहीं लाया जाता तो फिर खुदा खत्म कर देता है, काट डालता है, मार डालता है, क्योंकि वो कुदरत वाला है। इसलिए कहते हैं कि अपने आप को दुरुस्त करो। अगर खुदावन ने दुरुस्त किया तो फिर तकलीफ होती है, दर्द होता है, दुख होता है, क्योंकि कहते हैं कि खुदा लाठी से नहीं मारता, खुदा अकल ऐसी देता है। बादशाह ने क्या कहा कि मुझसे बड़ा जोरावर और ताकतवर कौन सा बादशाह है? ये मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है, मेरी कुव्वत है, जिसने बाबल को आबाद किया है। ये अल्फाज उसके जहन में आए और खुदा ने उसी वक्त उसे पकड़ लिया और इंसानों से निकाल कर जानवरों के साथ रख दिया। बेशक बैलों के साथ चारा खाता रहा, नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई, यहां तक कि वो जानवर बन गया और 7 अदवार उस पर से गुजर गए। जब गुजर गए तो फिर उसे याद आया कि उफ, मैंने गलती की है, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, बल्कि ये जो कुछ भी करवाया है खुदा ने करवाया। उसने हिम्मत दी, उसने ताकत दी, उसने कुव्वत दी। शायद आपको याद होगा, शुक्रगुजारी के हवाला से मैं अक्सर बात करता हूं, किंग गोडियस की गो के जंग जीत ली, सब कुछ हो गया, अपने मुल्क वापस भी आ गया, लेकिन जब उसने अपनी जिंदगी पर गौर की तो उसने गौर किया, सोचा कि कहीं ना कहीं खराबी है, और खराबी कहां पर है? मेरे अंदर है। जब उसे यह फील हुआ कि मेरे अंदर खराबी है, तो उसने कहा कि मैंने नहीं, खुदा ने जंग लड़वाई, मैंने जंग लड़ी और फिर मैंने जीती। आमीन। बेशक बेशक, फिर मैंने जंग जीती। बेशक।
जंग जीतने में मेरी कोई बहादुरी नहीं। अक्सर हम जब बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं तो हम सोचते हैं शायद मैंने मेहनत की है, इस वजह से मिला है, मैंने कोशिश की है, इस वजह से मिला है, या मैं मेहनत सबसे ज्यादा करता हूं, इस वजह से मिलता है। ये खुदा का फजल है। आमीन, बेशक। तो क्या कहता है मालिक कि 1 साल और मैं इस पर मेहनत करूंगा, मैं इसे हर चीज समझाऊंगा, थारा खोदूंगा, खाद डालूंगा, वक्त पर पानी दूंगा। अगर ये फल ना लाया तो फिर क्या करना, इसे काट डालना, क्योंकि फिर ये इस लायक ही नहीं कि ये फल लाए। खुदा ने 2024 का साल हमारी जिंदगी में दिया, हमें 2023 में की गई गलतियों पर गौर करने की जरूरत, सोचने की जरूरत है। मैंने अपनी जिंदगी में कौन कौन सी गलती की है जिसकी वजह से मैं इस काम में भी नाकाम रहा हूं, इस काम में भी नाकाम रहा हूं, इस काम में भी नाकाम रहा हूं। अब मुझे 2024 में वो गलती नहीं करनी है, नहीं दोहरानी है। अगर मैं 2024 में भी वही गलती दोहराऊंगा तो मैं कभी भी फल नहीं ला सकता, मैं कभी भी फलदार नहीं बनूंगा। और बेफल दरख्त से खुदा को नफरत है, कभी भी खुदा उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि उसका जमीन पर रहने का कोई मकसद ही नहीं। जब तक आपकी जिंदगी के अंदर कोई मकसद नहीं, कोई प्लान नहीं है, आपकी जिंदगी बेमायने और बेमकसद है। इसलिए मेरे अजीजों, 2024 में अपनी जिंदगी के उन तमाम मकसद को अपने सामने रखें जो आपने 2023 में किसी भी तरह से मायूसी में गुजारे, परेशानी में गुजारे, नाकामी में गुजारे। अब आप गौर करें और सोचें कि मैं 2024 में ना नाकाम होऊंगा, ना परेशान होऊंगा, और ना ही मैं ऐसा कोई गलत काम करूंगा जिसकी वजह से मुझे पछताना। खुदा ने 2024 का साल हमारी जिंदगी में दे दिया, ये उसका फजल है। अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते तो ये साल इसी तरह से हमारी जिंदगी में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हम अंजीर के दरख्त की तरह वहीं पर वैसे के वैसे ही खड़े रहेंगे। ना हमसे किसी को कोई फायदा होगा, ना किसी को कोई नुकसान होगा। फिर एक वक्त आएगा कि हमें काट कर फेंक दिया जाएगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन, आमीन।